everyone, online class 8th subject SST chapter 7 external forces responsible for changes परिवर्तनकारी ग्रह शक्तियाँ. The shape of the land is not always same, but it keeps on changing. Some of the forces work in changing its shape. These forces are of two types: internal force and external force. Internal force form some of the new landform shape, while external forces work in changing the shape. In the previous lesson, we have learned about internal forces. In this lesson, we will study about the external forces. There are two types of external forces. First, those which weaken the rocks at its place to break them, and the second which shift these pieces of rocks from their original places to take them to lowlands. Rivers, wind, underground water, glacier, and sea waves are the second type of external force which play an important role to change the shape of the landform. The first process of this is called weathering, and the second is erosion cycle. धरातल के स्वरूप सदैव एक जैसा स्थायी नहीं रहता है, वह बदलता रहता है. इसके फलस्वरूप को बदलने की कुछ शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं. यह शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं: आंतरिक शक्तियाँ और बाह्य शक्तियाँ. आंतरिक शक्तियाँ धरातल पर कोई न कोई नई स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जबकि बाह्य शक्तियाँ उन स्थलाकृतियों को परिवर्तन करने में जुट जाती हैं. आंतरिक शक्तियों के बारे में पिछले पाठ में अध्ययन कर चुके हैं. इस पाठ के परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियों का अध्ययन करेंगे. बाह्य शक्तियाँ दो प्रकार की होती है. प्रथम, जो चट्टानों को अपने ही स्थान पर कमजोर कर तोड़ फोड़ करती हैं, और दूसरी वो जो उन टूटे फूटे चट्टानों टुकड़ों के कणों को उनके मूल स्थान से हटाकर निचले भूभाग पर जमा करती है. नदियाँ, पवनें, भूमिगत जल, हिमानी और समुद्र लहरें दूसरी प्रकार की शक्तियाँ हैं जो स्थलाकृतियों के स्वरूप में परिवर्तन करने की मुख्य भूमिका निभाती हैं. इनमें प्रथम प्रक्रिया को अपक्षय तथा द्वितीय को अपर्दन चक्र कहते हैं. Weathering is a kind of process in which the rocks and break at its own original place. Mainly weather and season affect the spread of rocks. Temperature, rain, hail, fog, and snowfall are the main factors of the season, so these forces are also called season weathering forces. As soon as the rocks come into contact with the weather, their weathering starts. Each rock has some sort of minerals in it, and it helps in chemical reaction. अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खुली चट्टान को विघटन और अपघटन अपने मूल स्थान पर ही होता है. चट्टानों के विघटन के मुख्य रूप से मौसम या ऋतुओं के तत्वों का प्रभाव पड़ता है. तापमान, वर्षा, पाला, तुषार, कोहरा और हिम मौसम के मुख्य तत्व हैं. इसलिए इन ऋतुओं को अपक्षयकारी शक्तियाँ भी कहते हैं. धरातल पर पड़ी हुई चट्टानें जैसा कि मौसम के तत्वों के संपर्क में आती है, वैसे ही उनका अपक्षय होने लगता है. प्रत्येक चट्टानों में किसी न किसी खनिज का अंश अवश्य रहता है जो रासायनिक परिवर्तन में सहायक होता है. Breaking of rocks takes place due to change in temperature and pressure of hails. Look at the picture and see how the rocks break and their debris get collected at the some place due to gravitational force. Rocks expanded in the day temperature and shrink suddenly at night due to fall in temperatures, which result in cracks of rifts. Its slowly disintegration the rocks. The weathering of rocks is a mechanical process, and will in the erosion process of the rocks undergo chemical changes. Molecules of minerals are so interwoven in rocks that at first their extensions is not visible, but when it rains some of the minerals dilute and flow. Some of the minerals change in form. In the way
weathering and erosion process of nature continuous simultaneously at its own place. The entire process is called weathering. In this process season also plays its roles, therefore it is called season weathering also. चट्टान का विघटन 2 फुट तापमान में परिवर्तन के और पाले तुषार के प्रभाव से होता है। चित्र में देखिए किसी प्रकार चट्टानों का विघटन होने से उनके टुकड़े एवं मलबा उसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का इकट्ठा होता रहता है। दिन की गर्मी की चट्टानें फैलती हैं और रात की ठंड में का एक सुकून में उनमें तड़कन या दरारें पड़ जाती है। धीरे धीरे चट्टानों को चूर चूर करती जाती है। चट्टानों का विघटन एक यांत्रिक प्रक्रिया, जबकि अपघटन की प्रक्रिया में चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। चट्टानों में खनिजों के कण इस प्रकार आपस में गुथे होते हैं कि वो पहले तो अब उसका अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब वह पानी गिरता है तब चट्टानों में किसी खनिज घुलकर बह जाते हैं और कुछ खनिजों के रूप बदल जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक या विघटन, टूट-फूट या अपघटन, घुलन की प्रक्रियाएं तथा साथ में अपने ही स्थान पर चलती रहती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही अपक्षय कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऋतुओं को भी सहयोग मिल रहता है, इसलिए इसे ऋतु अपक्षय भी कहते हैं। वेदरिंग इज ए लोकल प्रोसेस in which guardian and spread of rocks occur at their original place. अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन और अपघटन उनके मूल स्थान पर ही होता है। टाइप्स ऑफ वेदरिंग। अपक्षय के प्रकार। वेदरिंग इज ऑफ 3 टाइप्स। अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। फिजिकल वेदरिंग, the disintegration of rocks into tiny pieces of mechanical process is called physical weathering. When the temperature increase, the rocks expand, and when temperature fell sharply, the rocks contract. This alternate expansions and contractions of rocks leads to tension and creates a series of crackers of joint in the rocks, splitting them into blocks. This is now as block disintegrations. Some rocks are not good conductor of heat. Consequently, the expansions and contractions is more in the outer layer than in the inner ones. The outer layers are thus filled up from the main mass of the rocks in the form of constrict cell. This is just like peeling of an onion, and the upper layer of round rocks turns into powder. In most cold regions, the holes of rocks filled up with water gets frozen. When temperature falls, when it freezes, the diameter of rocks increase and holes get more wide and at last break up. भौतिक अपक्षय, जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। जब तापमान अधिक बढ़ता है, उस चट्टानें फैलती हैं, तब अधिक गिर जाता है तथा सिकुड़ जाता है। इस प्रकार फैलने और सिकुड़ने की से चट्टानें छिटक जाती हैं और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें चौड़ी होकर अंत में टूट कर अलग हो जाती हैं। कुछ समय बाद इस प्रक्रिया में इनमें टूट फूट होती रहती है। अंत में इनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कुछ गोलाकार चट्टानें की ऊपरी परतें प्याज के छिलकों की तरह उतर कर वही चूरा हो जाती हैं। अधिक ठंडे प्रदेशों में चट्टानों की संधियों में भरा जल तापमान गिरने पर जम जाता है और जमने पर बर्फ का आयतन बढ़ जाता है, जिससे संधियाँ और अधिक चौड़ी होती जाती हैं और अंत में टूट जाती हैं। केमिकल वेदरिंग। रासायनिक अपक्षय। ड्यू टू केमिकल चेंजेस, लाइम, जिप्सम, सल्फर, साल्ट रॉक्स melt into water or disintegrate, melt or get roasted. Thus the rocks lose its originality and ether gets dissolved with water or become powder and give birth to new material. This process is called chemical weathering. The moisture and rain play a vital role in it. रासायनिक अपक्षय। रासायनिक परिवर्तनों के कारण चूना, जिप्सम, गंधक, सेंधा, नमक की चट्टानें जड़ से घुल जाती हैं और बिखर जाती, गल जाती हैं और जंग खा जाती हैं। इस प्रकार चट्टानें अपना मूल स्वरूप खो देती हैं और पानी में घुलकर या चूर्ण होकर नए पदार्थों को जन्म देती हैं। इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इनमें
नमी और वर्षा के महत्वपूर्ण योगदान होता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक अपक्षय। द बायोलॉजिकल वेदरिंग occurs due to the activities of vegetation, animal and human being. The roots of trees enter into the cracks of rocks and split them wide and break up. Burrowing animals like rat, termite, ants, earthworms and other creatures also contribute to this process of breaking and peeling. The human beings also break up rocks for forming houses, building road, making this process is now as biological weathering. जैविक अपक्षय वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्यों द्वारा होता है। वृक्षों की जड़ें चट्टानों की संधियों में पहुंचकर और अधिक चौड़ा कर उन्हें तोड़ देती है। चूहे, दीमक, चींटियां, केंचुए और जीव नरम चट्टानों से तोड़ते फोड़ते और रुचते हैं। मनुष्य में भी कृषि उपयोग के लिए, भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए चट्टानों की तोड़फोड़ करता है। इस प्रकार के अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ रॉक्स, weathering plays an important role in soil formation because the small rocks particles make up the soil. चट्टानों का विघटन के अलावा अपक्षय का मृदा के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि विखंडित चट्टानों में महीन कण ही तो मृदा में होते हैं। थैंक यू।